Hello students, welcome to my lecture. This lecture is very different. In this lecture, I would like to address the students of standard 10th, especially the students who are aspiring for various competitive exams or entrance exams which are taken at national level like NTSC, National Talent Search Examination. So I would like to solve a few problems which are based on statistics for standard 10th. There are a few problems which are of different types. The first problem that we are going to see is find the mean, mode and median. First of all, let me tell you about myself. I am Professor Vinay Zokare. I belong to NB Navle Sihangad College of Engineering, Solapur. So basically, I am an assistant professor in this college. I belong to the Department of Electronics and Telecommunication Engineering, and I would like to show you a few things regarding my qualification. My qualification is BE in Electronics, and this is my profile. So you can see my profile on LinkedIn. So this is a site called LinkedIn where you can see my profile. I am Professor Vinay Zokare. I am a passionate teacher. I teach creative thinking, critical thinking, and I am a soft skill trainer at the college level. I am also an enthusiast in artificial intelligence and machine learning. And I am at the intermediate level in Python, R, and data science. I'm working with NB Navle Sihangad College of Engineering, Solapur. I have 18 years of experience with 6 years in industry and 12 years in academics. I have been guiding the students in various sectors, and also I have been counseling them for their career, and many students have got benefited due to the counseling that they have taken from me. So let us start with the lecture. So first problem is finding the mean, mode and median. This is a problem based on statistics. So let us see, there are a few numbers given in the problem and we have to find the mean, the mode and the median. First of all, let us understand the concept. What is the mean, the mode and the median? So let us say what is the mean. Mean is actually the average. So when you take the statistical average, it is nothing but the mean. And what is the average? It is sum of all the numbers divided by the number of numbers. So you have to sum all these numbers and divide it by 10 because there are 10 numbers here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So take the sum of all these numbers and divide them by 10. For example, so what is mean? Let's say you have 4 test scores. So these are your 4 test scores: 15, 18, 22, 20. So to find the mean, what you are going to do? You are going to add 15 plus 18 plus 22 plus 20 and divide them by 4. Why 4? Because there are 4 numbers. 1, 2, 3, 4. See, 1, 2, 3, 4. So there are 4 numbers. That's why add them and divide by 4. You will get the answer as 75 by 4, which is 18.75 in this case. But if you want to find the mean of all these numbers, then you have to divide it by 10. Add the numbers and divide by 10. So here is the answer for this. See, what is the solution? See, these are the numbers. So you can see the numbers here. I'll just magnify them for you. So the numbers are 133, 73, 89, 108, 94, 140, 94, 85, 100, 120. So mean is sum of all numbers divided by total numbers, So let us add them. 133 plus 73 plus 89 plus 108 plus 94 plus 140 plus 94
plus 85 plus 100 and plus 120 and divide them by 10 because there are 10 numbers here. So the sum of all these numbers comes out to be 1036. So if you do it, the sum is 1036, 1036 divided by 10. If I divide any number by 10, what happens is the decimal will get shifted to left by one digit. So here the answer will be 103.6, and this is the mean. If we round it up, this will be 104. So if you round it up like 103.6, अगर आप इसको राउंड अप करते हो तो ये 0.6 है, 0.5 से ज्यादा है, इसलिए थोड़ा 104 से नजदीक है, इसलिए इसको आप लोग 104 ये आंसर बोल सकते हो. सो मीन इज 104. नाउ लेट अस सी व्हाट इज मीडियन. मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो पहले इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, starting from lowest number first and going towards the highest. तो इन नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो ये 73 है, तो शुरू 73 से करो, तो 73. फिर 73 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है? 85 है, तो 85 नेक्स्ट आएगा. उसके बाद कौन है? 89, सो 89 विल बी नेक्स्ट. देन 94, फिर एक बार 94, तो 94 दो बार है, इसलिए 94 के बाद कौन है? 100 है, सो लेट अस टेक 100. 100 के बाद कौन है? 108 है, 108, देन 120, देन 133, देन 140. मतलब इन नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट ऐसे आपको इसको अरेंजमेंट करना है इस नंबर का, राइट? तो इन नंबर का अरेंजमेंट करने के बाद पहले ये देखो कि ये नंबर, टोटल नंबर जो है ये इवन है कि ऑड है. मतलब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, 10 नंबर है, टोटल नंबर 10 है, तो इसलिए ये इवन नंबर है. अगर इवन नंबर है तो बीच वाले दो नंबर लेने का, मतलब ये 10 नंबर है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 नंबर आएंगे और यहाँ पे बीच में 2 नंबर आएंगे. सपोज अगर ऑड नंबर होते तो क्या करते आप? ऑड नंबर होते तो बीच वाला नंबर डायरेक्टली लेने का. मतलब कैसा? देखो अभी यहाँ पे मीडियन निकाल रहे हैं. सपोज ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर है. एक 17 है, फिर 44 15 9 3. कितने नंबर्स है? 5 है. तो 5 ऑड है कि इवन है? 5 ऑड है, करेक्ट है. तो 5 अगर ऑड है तो देखो पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब सबसे छोटा कौन है? 3, फिर उसके बाद कौन है? 9, उसके बाद कौन है? 15, उसके बाद कौन है? 17, फिर उसके बाद कौन है? 44. देखो ये 17 और 44 का एक ग्रुप, 3 और 9 का एक ग्रुप, मतलब इधर दो और इधर दो, और बीच में एक ही नंबर बचता है. मतलब जब आपके पास ऑड नंबर है, मतलब आपके नंबर जो है उनका जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए, तो बीच वाला नंबर मीडियन होता है, मतलब सेंटर नंबर विल बी द मीडियन. बट अगर इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 44 17 6 3 8 12, ये देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 नंबर है. तो 6 नंबर होने की वजह से ये इवन नंबर बन गया है. तो इवन अगर है तो क्या होता है? इधर दो और इधर दो, और बीच वाले दो जो है उनका एवरेज निकालना पड़ता है आपको, मतलब उन दोनों को ऐड करना पड़ता है एंड देन डिवाइडेड बाय 2. सो एवरेज मतलब क्या? दोनों नंबर का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20 बाय 2 विच इज 10. तो इन सब का मीडियन कौन है? 10 है. प्रोसेस देखो फिर से, अगर आपके नंबर ऑड है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ऑड नंबर्स है, तो उनको पहले अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो पहले. तो उसके बाद बीच वाला नंबर बरोबर, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में जो नंबर है
वो नंबर आपका मीडियन होता है। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है तो डेटा पॉइंट्स देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 6 है, तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर में क्या करने का, पहले अरेंज करो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड देन बीच वाले दो नंबर, राइट। मतलब देखो इस केस में कैसा है, इधर दो एंड बीच में दो नंबर है, तो बीच वाले दो नंबर का एवरेज, मतलब क्या, बीच वाले दो नंबर को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20/2 10। अभी अपना प्रॉब्लम देखो कैसा है, देखो अपना प्रॉब्लम कैसा है, ये इतने बड़े नंबर है अपने पास और 10 नंबर्स है। तो पहले क्या करने का, इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज किया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, मतलब सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा लास्ट में, राइट। फिर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हमने। अब देखो ये इवन नंबर है, मतलब कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये 10 है। तो 10 है इसलिए हमने क्या किया, इधर 4 एंड देन बीच में दो नंबर है, तो बीच वाले दो नंबर ये इनका एवरेज लेने का, क्योंकि ये इवन है। सो इन केस ऑफ इवन डेटा पॉइंट्स क्या करो, यहाँ पे ऐसे डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करो और बीच वाले दो डेटा पॉइंट्स ले लो, बीच वाले दो और उनका एवरेज ले लो। तो 94 और 100 का एवरेज, मतलब 94 + 100 डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या आएगा, 194 डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या आएगा 97। तो ये आपका मीडियन आ गया 97। अब मोड मतलब क्या, मोड ऐसे इंटीजर्स है जो उस सीक्वेंस में या फिर उस डेटा पॉइंट्स में फ्रीक्वेंटली आते हैं। फ्रीक्वेंटली मतलब दे रिपीट फ्रीक्वेंटली। तो अब इन नंबर्स को अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिखा तो हमें दिखता है कि 94 ऐसा इंटीजर है जो इसमें 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, मतलब इट इज ऑकरिंग ट्वाइस, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ऑकरेंस जिसका ज्यादा है नंबर का, वो मोड है। और मोड कैन बी मोर देन 1, ये ध्यान में रखो, या मोड हो भी नहीं सकता। तो मतलब क्या, एक प्रॉब्लम दिया आपको और उसमें कोई भी नंबर एक से ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब क्या, उसमें मोड नहीं है। अगर एक प्रॉब्लम दिया उसमें दो नंबर है, सपोज यहाँ पे मैंने ये 94 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या हो गया, 94 हो गया, क्योंकि यही एक नंबर है जो दो बार रिपीट हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अभी ऐसे ऐसे चुप ऐड किया 100 यहाँ पे, तो 100 भी दो बार रिपीट हुआ, तो मतलब इसके दो मोड आ गए। देखो अभी एक 94 दूसरा 100, मतलब 94 दो बार रिपीट हो रहा है और 100 भी दो बार रिपीट हो रहा है। सपोज ऐसा हो गया कि 94 तीन बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो देखो कौन सा ज्यादा रिपीट हो रहा है, वही मोड है। तो इनमें 94 3 बार हो रहा है रिपीट और 100 दो बार हो रहा है, तो कौन सा ज्यादा है, 94। तो इसका मोड सिर्फ 94 है। लेकिन देखो अगर मैंने ये 94 निकाल दिया यहां से, तो क्या होता है, 94 दो बार है, 100 भी दो बार है, तो इस केस में मोड दो आते हैं, एक 94 दूसरा 100, क्योंकि दोनों भी इक्वली रिपीट हो रहे हैं। 94 भी दो बार, 100 भी दो बार। समझ में आया। सो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं था अपना, हमने बहुत सारा एडिशन किया है। ये प्रॉब्लम में सिर्फ 94, देखो ये एक 94 है और यहाँ पे एक 94 है, तो ये 94 ध्यान से देखो सीक्वेंस में, मैं इसको ऐसे ये कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, ये 94 और ये वाला 94। देखो ये सीक्वेंस में दो ही नंबर है, ऐसा 94 एक ही नंबर है जो दो बार रिपीट हो रहा है, बाकी सभी नंबर यूनिक है जो रिपीट नहीं हो रहे, एक ही बार आ रहे हैं। तो मतलब क्या, इसका मोड बन गया 94, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन दैट नंबर रिपीट्स, दैट इज नथिंग बट मोड। समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया। देखो बहुत सिंपल है। अब फिर से रिपीट करो, मीन मतलब क्या, मीन मतलब एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, सब नंबर का एडिशन करो एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ये बन गया आपका मीन। मीडियन क्या है, पहले नंबर को
देखो कितने नंबर है, वो इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है कि ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। तो पहले उनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर ऐसे भी बोलते हैं, असेंडिंग मतलब फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो उनको अरेंज करो। अगर इवन नंबर है तो बीच वाले दो डेटा पॉइंट लेने का, इवन नंबर है तो कौन सा भी इवन नंबर, कौन सा भी इवन नंबर, फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 में क्या करोगे, सपोज ऐसे 4 नंबर है तो सपोज मैंने आपको नंबर दिए, नंबर ऐसे 14, 22, हाँ 33, 33 and then you have 55. So there are 4 numbers here, right? तो ये नंबर को क्या करने का अपन, ये नंबर को अपन पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने का, मतलब कैसे, पहले 14, फिर उसके बाद कौन आएगा 22, फिर आएगा 33, फिर आएगा 55। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो क्या करने का, पहले 14 और 55 को छोड़ देने का, ये बीच वाले जो नंबर है 22 और 33 इनको प्लस करने का, मतलब इनका एवरेज लेने का, 22 प्लस 33 इनको ब्रैकेट में डालो और इनको डिवाइड बाय 2 करो, इनको डिवाइड बाय क्या करो 2 करो। तो 22 प्लस 33 कितना आता है 55, 55 बाय 2 कितना आता है 27.5, मतलब इसका मीडियन क्या आ गया 27.5। समझ में आया? वेरी वेरी सिंपल, मतलब अगर इवन नंबर है तो बीच वाले दो नंबर लेने का कभी भी, क्लियर, राइट। सो ये इवन नंबर है तो बीच वाले दो नंबर लिए 94 और 100, इनका एवरेज निकाला 94 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 194 बाय 2 आया, मतलब आपका मीडियन आ गया 97। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो क्या करने का, तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने इनको ऐसे दिया, आपको सिचुएशन ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑड नंबर है 22, 44, 12 एंड 66। तो पहले तो क्या करो, सॉरी 66, इसके बाद 77। तो ये 5 नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऑड नंबर आ गए। तो पहले इसको अरेंज करो, 12 पहले सबसे छोटा, फिर कौन आया 22, फिर कौन आया 44, फिर कौन आया 66, फिर कौन आया 77। ये हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या करने का, अगर ये ऑड नंबर है तो ये दो नंबर और ये दो नंबर छोड़ देने का, बीच वाला नंबर कौन है 44। तो जब ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है आपके पास, तो एग्जैक्टली मिडल वाला नंबर जो होता है वो आपका मीडियन होता है। तो इसका मीडियन है 44, इसका मीडियन कौन है 44। समझ में आया? सो आपको पहले पहचानना है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है डेटा पॉइंट्स। तो ये इवन नंबर है, इसलिए हमने क्या किया कि इधर 4 और इधर 4 आ गए और बीच में 2 डेटा पॉइंट्स, इनका एवरेज ले लिया, इनका मीडियन आ गया 97। मोड का तो मतलब आप समझ चुके हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो मोड होता है, और मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, करेक्ट है। तो इस केस में मोड क्या है 94 है, क्योंकि 94 ऐसा नंबर है जो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, बाकी सब नंबर एक ही बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसका मोड क्या आया 94। डन, ओके, दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब क्लॉक का मिनट हैंड जो है, जो सबसे लंबा होता है वो मिनट हैंड। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में ये कितना एरिया कवर कर लेता है मिनट हैंड। एरिया मतलब जो सेक्टर का एरिया होता है, ऐसा बीच वाला एरिया 1 मिनट में। तो सपोज मिनट हैंड 12 बजे के यहाँ पे है, तो 1 मिनट कवर करने के बाद ये जो एरिया है बीच वाला एरिया वो कितना है वो पूछ रहे हैं, दैट एरिया, करेक्ट है। और इसका लेंथ दिया है, मिनट हैंड का लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो लेट अस सी द प्रॉब्लम। देखो ये मैंने क्लॉक निकाला यहाँ पे। अब देखो ये मिनट हैंड क्या करता है, पूरा 1 घंटे में
मतलब इन 1 आवर इट कवर्स टोटल 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360, मतलब 1 फुल रोटेशन। तो 12 से 1 तक आने तक उसको लगता है 30 डिग्री। कितना कवर करता है वो? 30। मतलब हर 5 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करता है। हर 5 मिनट में 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 30, इसमें बन गया 60, इसमें बन गया 90 डिग्री, फिर 120, फिर 150, ऐसे करते करते पूरा जब ये 12 पे फिर से आता है वापस, तो ये कितना कवर करता है? 360 डिग्री कवर करता है। 12 से 6 बजे तक आने तक 180 डिग्री कवर करता है। 180 एग्जैक्टली लीनियर पेयर है ये। देखो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक उसको 180 डिग्री लगता है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब ये समझ में आने के बाद हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट इन 1 मिनट निकालना है। तो देखो 5 मिनट में 30 डिग्री कवर करता है। 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? तो आप क्या करोगे? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 करोगे, क्योंकि 5 मिनट में 30 कर रहा है, तो 1 मिनट में कैसे निकालोगे? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। सो दैट कम्स आउट टू बी 6 डिग्री। देखो यहाँ पे दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। थोड़ा बड़ा करता हूँ ये डायग्राम। देखो देखो, ये 12 बजे से 12 बजकर 1 मिनट है। तो यहाँ पे जो है एंगल, ये एंगल कितना है? 6 डिग्री है। फिर ये 2 मिनट हो गए तो 12 डिग्री बन गया। 3 मिनट 18 डिग्री, मतलब 18 डिग्री। 4 मिनट्स 24 डिग्रीज, एंड 5 मिनट्स और 6 डिग्री ऐड करो। मतलब हर बार 6 डिग्री ऐड करते जाओ। 1 मिनट में 6 डिग्री, फिर 6 + 6 विल बिकम 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30। तो 12 to 1 जब आता है मिनट हैंड, मतलब 5 मिनट होते हैं, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करता है, जो ऊपर दिखाया हमने इधर। सी है 12 से 1 बजे तक कितना डिग्री है? 30। करेक्ट है। तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन यहाँ पे 1 मिनट का है। ये 12 से 12 बजकर 1 मिनट, मतलब 12 past 1 minute. तो in this duration it covers an angle of 6 degrees in 1 minute. सीधा है। 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स करो। 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स, so 30/5 विल बी 6 डिग्री। समझ में आया? तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है? 6 डिग्री। तो थीटा क्या बन गया आपका? 6 डिग्री बन गया। थीटा इज 6 डिग्री। अब देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर? ये छोटा जो दिख रहा है ना सेक्टर, यहाँ पे इसका एरिया पूछ रहे वो। आर यू गेटिंग मी? इसका एरिया मतलब बेसिकली आई विल शो यू हियर कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहे हैं। सी हियर दे आर आस्किंग यू दिस एरिया। ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, ये एरिया। तो दिस एरिया दे आर आस्किंग यू, राइट? 12 से 12 बजकर 1 मिनट में जो भी ये एरिया दिख रहा है, इतना सारा एरिया, तो दिस एरिया दे आर आस्किंग। नाउ दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो देखो इसका आंसर कैसे आएगा? एंगल मेड बाय मिनट हैंड एट सेंटर इन 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर। 1 आवर में वो फुल घूमता है, 360 डिग्री आता है। एंगल मेड बाय मिनट हैंड एट सेंटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या करता है? 360 डिवाइड बाय 60, मतलब 6 डिग्री करता है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 6 डिग्री। और रेडियस मतलब उसका लेंथ कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा कितना है? 6 डिग्री है। सो 6 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब इसका लेंथ का मतलब रेडियस का स्क्वायर, 14 इंटू 14। तो इसको डिवाइड करो, इसके बाद जो आंसर मिलता है आपको, वो आंसर मिलेगा 154/15। 154/15। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटीजर 4/15। देखो 15 10 जा 150, 150 + 4 154, 154 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो योर एरिया इज 10 इंटीजर 4/15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। तो समझ में आया? सो योर एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके।
Do I need to repeat the problem? I think that it's very clear now, right? अब तीसरा प्रॉब्लम झट से देखते हैं. देखो, it is very very simple problem again. ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है. So let us see the problem. थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा. देखो, राम ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टू साउथ. देखो, राम यहाँ पे खड़ा है. अब ये देखो डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ. यहाँ पे राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है. ओके, ये अपने डायरेक्शन से क्या बोला है, राम ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टू साउथ. तो राम यहाँ पे खड़ा है. राम का ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है. समझ में आ रहा है, ये राइट और ये लेफ्ट. तो राम यहाँ पे खड़ा है, पहले 8 किलोमीटर साउथ जाता है. साउथ मतलब कहाँ, नीचे. तो देखो 8 किलोमीटर नीचे आया, वो यहाँ पे नीचे आ गया. तो उसका राइट हैंड है यहाँ पे, करेक्ट है. तो यहाँ पे खड़ा है अभी राम, यहाँ पे आके खड़ा है. तो क्या करता है, देन मूव्स टू राइट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर. तो यहाँ से राइट को मुड़ता है, तो इसका राइट हैंड इधर है, तो ये इधर जाता है 6 किलोमीटर, करेक्ट है. अब 6 किलोमीटर जब वो ऐसे ट्रेवल करता है, तो उसका राइट हैंड इधर आता है, इस तरफ ऊपर की तरफ अभी. एंड देन ही अगेन मूव्स राइट एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर. तो राइट को मूव करके मतलब वो फिर से ऊपर जाता है 8 किलोमीटर. डिस्टेंस ऑफ राम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज. तो इनिशियल पॉइंट उसका ए था, अब फाइनल पॉइंट उसका बी है. देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है नीचे, तो ऊपर का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 6 किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 8 किलोमीटर और 8 किलोमीटर. और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये रेक्टेंगल बन गया. क्योंकि देखो, राम सीधा ऊपर से नीचे आया, फिर राइट को मुड़ गया. राइट को मुड़ गया मतलब परपेंडिकुलर बन गया ये 90 डिग्री. फिर यहां से आपके 6 किलोमीटर चल के फिर से राइट गया 8 किलोमीटर, मतलब राइट 8 किलोमीटर गया. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए. ये डिस्टेंस कितना है, 6 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 6 किलोमीटर. तो क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ राम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट. राम का इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ए था. फाइनल पॉइंट क्या है अभी, बी है. तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट इज शोन बाय डॉटेड लाइन व्हिच इज 6 किलोमीटर. तो आपका आंसर रहेगा 6 किलोमीटर. ओके, सो स्टूडेंट्स, डोंट see here, don't get discouraged if you cannot solve a problem. पहले प्रॉब्लम के ऊपर अच्छी तरह से थिंक करो. एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल. और ऐसे डायग्राम निकाल के सॉल्व करो प्रॉब्लम को. दिस इज द करेक्ट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. I will come back again. This is Professor Vinay Zokare signing off from the competitive examinations. Thank you.